Hi everybody, welcome back to my channel. I'm Shramana Das and I make videos about higher education in abroad, lifestyle in Germany and much more. So in today's video, I'm going to talk about one of the most important topic or one of the recently introduced rule for studying in Germany, that is APS certificate. बहुत बारे में ज़्यादा आइडिया कुछ भी नहीं होगा because ये बहुत ही recent rule आया है इंडिया में of this certificate. So in this video I am going to talk everything A to Z about APS certificate, document required, eligibility requirement, कैसे अप्लाई करना है, etc etc. So इस वीडियो को end तक देखिए and if you are new to my channel and if you like my content, please do consider subscribing, and if you are already a member of this family, then thank you for watching. So without any further ado, let's start this video. So सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं APS सर्टिफिकेट के बारे में और ये एक्चुअली होता क्या है. So APS certificate is basically will show the government, the German government basically, that your documents are authenticated. So basically कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था जहाँ पे जर्मन एम्बेसी ने कहा था कि इंडियन स्टूडेंट्स के 15% of the Indian students have fake documents. So just to prevent this and also due to the increased number of applications in German universities, जर्मन गवर्नमेंट ने ये नया रूल निकाला है जहां पे जो सबसे पहली स्टेप होगी व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी इज दैट यू शुड हैव अ एपीएस सर्टिफिकेट. सो पहले भी एपीएस सर्टिफिकेट था बट इंडिया के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल. ये एप्लीकेबल था सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स एंड वियतनामी स्टूडेंट्स के लिए, बट फ्रॉम समर सेमेस्टर 2023 दे मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वेदर इट इज ओनली फॉर बैचलर स्टूडेंट और इट इज ऑल्सो applicable for those who are applying for masters. So guys, this APS certificate will be issued for everybody, for all the students who want to study both bachelors and masters in Germany. अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज हम बोलने वाले हैं दैट इज ये कब से चालू हो रहा है. सो इफ योर वीजा अपॉइंटमेंट इज आफ्टर नवंबर, इज from November 2022, like after October 2022, rather you are from winter semester, rather you are from summer semester, you should have an APS certificate with you. This will also help you to fast track your visa application and I think that is great. So नवंबर से जिनकी भी वीजा अपॉइंटमेंट है उन सबको ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए टू शो दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिक एंड यू आर नॉट शोइंग एनी और गिविंग एनी फेक डॉक्यूमेंट्स. नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट जो न्यूज है वो है कि कब से आप अप्लाई कर सकते हो जर्मन एम्बेसी को फॉर this certificate. So आप अक्टूबर 2022 से इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये एप्लीकेशन सिर्फ न्यू दिल्ली के ही एम्बेसी में होगा. So and now the next question is कैसे अप्लाई करना है. आपको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है या आप बाय पोस्ट कर सकते हो. सो आप बाय पोस्ट एंड इन हैंड उनके ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी या तो एक स्कैन्ड कॉपी आप सबमिट कर सकते हो. एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन फी? द टोटल एप्लीकेशन फी इज 18,000. तो आप जब ये पेमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, विद इन 3 to 4 वीक्स आपको 5 सर्टिफिकेट्स इशू होंगी. उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो आप 500 रुपीज एक्स्ट्रा देके एक्स्ट्रा APS certificate मंगा सकते हो. But I think 5 certificates are enough. I know that 18,000 is quite high, but we cannot do anything. We have to pay for it. अब ideally this is only required for visa applications, but it is really recommended or suggested that जो भी winter 2023 में अप्लाई कर रहे हो वो अभी से ही सबसे पहले APS सर्टिफिकेट ले लो. फर्स्ट इट इज ओनली इशूड इन दिल्ली, सो अंडरस्टैंड कि पूरे इंडिया के बच्चे जब अप्लाई करेंगे सो देयर विल बी अ ह्यूज रश. सेकंड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लाइक TUM has mandate that APS certificate is mandatory even for the application
for particular courses in the university. Now the next जो और एक important document के बारे में बहुत सुनने को आ रहा है is test as certificate. Test as is basically an examination that needs to be given, but it is still now waived off for summer semester 2023. And now अब है कि test as क्या होता है? Test as basically एक examination होता है to just show that you have the basic knowledge to study in Germany. अब टेस्ट एस सर्टिफिकेट किसको देना है? सो बेसिकली दिस टेस्ट एस जो एग्जाम है वो बेसिकली उनको देना है जो बैचलर्स करने जाएंगे जर्मनी में और जिनकी अभी तक रिजल्ट्स लाइक अगर कोई कॉलेज लाइक कोई ग्रेजुएशन कर रहा है इंडिया से और उनकी अभी तक रिजल्ट्स नहीं आई है फाइनल रिजल्ट्स, उनको टेस्ट के लिए टेस्ट देना पड़ेगा. एंड बैचलर्स के लिए ये मैंडेटरी है. ये सब लाइक फ्रॉम विंटर सेमेस्टर टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु आर कमिंग फॉर बैचलर्स इन जर्मनी, बट मास्टर्स के लिए टेस्ट इज स्टिल नाउ नॉट मैंडेटरी. अब और एक चीज मैं बता देती हूँ वीडियो के बीच में इज दैट ये जो पूरी टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा. सो इस वीडियो में मैं सिर्फ मास्टर्स को फोकस करके बात कर रही हूँ, उनकी एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एवरीथिंग. इस टॉपिक में मैं आगे भी और 2 वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं बैचलर्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ एप्लीकेशन सब कुछ लेके बात करूंगी. एंड इंटरव्यू टेस्टर्स के लिए कैसे इंटरव्यू होगी, एपीएस के लिए कैसे इंटरव्यू होगी, इन सब के बारे में भी बात करूंगी. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर ऑल दिस अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्योंकि सब कुछ अगर मैं एक ही वीडियो में बात करूंगी देन दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी लॉन्ग. अब नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर एपीएस सर्टिफिकेट. अब एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर एपीएस सर्टिफिकेट सबके लिए सिमिलर है. आपको APS-India में जाना है, लॉग इन करना है. सबसे पहले उनकी 18,000 पे करनी है. उसके बाद आपको आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स लेके या तो जमा करना है या तो पोस्ट करना है. आफ्टर दैट विद इन 3 to 4 weeks you will get your result that you are a successful candidate. और आप ऑनलाइन भी इसकी स्टेटस चेक कर सकते हो. बट गाइज बी रेडी फॉर डिलेज बिकॉज सिर्फ दिल्ली में ये चीज होने वाली है. But now the thing is the difference that comes is the document checklist. मास्टर जो लोग करने आने वाले हो उनकी डॉक्यूमेंट्स अलग होगी. जो लोग 12th के बाद बैचलर्स करने आने वाले हो उनकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अलग है. जो लोग 12th के बाद 1 साल बैचलर्स इंडिया में करके फिर आने वाले हो उनकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अलग है. एंड जो लोग IIT JEE देके आने वाले हो उनकी भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अलग है. तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे मैं सिर्फ मास्टर्स की क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो बता दूंगी. बाय द वे एप्लीकेशन प्रोसीजर बैचलर्स मास्टर्स सबके लिए सेम है. And one more thing, test test certificate is also exempted for those students who are coming for bachelor's or they have already given IIT JEE exam and they have passed it, like cleared their cutoff. So अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी वो सबसे पहले तो है APS की जो फी आपने जमा की है उसकी रिसिप्ट. सेकंड आपकी आधार कार्ड. थर्ड आपकी पासपोर्ट. आपकी क्लास 12th की मार्कशीट. क्लास 12th की एडमिट कार्ड. अगर आपके पास आपकी बैचलर्स की सारी मार्कशीट्स लाइक ईच एंड 1st to 8th सेम सारी मार्कशीट, आपकी बैचलर्स की सर्टिफिकेट की. अगर आपने मास्टर्स की और डबल मास्टर्स करने चाहते हो तो फिर उसकी सर्टिफिकेट एंड उसकी मार्कशीट एंड आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. सो पहले जैसे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन से काम चल जाता था जर्मनी में कि आपने दिखा दिया कि आप यू हैव स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर बैचलर्स डिग्री एंड इट्स डन. बट अब ये नहीं होगा. आपको IELTS देना मैंडेटरी है इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश टॉट कोर्स, और अगर आप जर्मन टॉट कोर्स में हो या तो आपकी प्रोग्राम में जर्मन रिक्वायरमेंट है तो आपको आपकी गॉथिक की जो सर्टिफिकेट है वो भी देना होगा. बट गाइज रिमेंबर, कोई भी सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल मत दो उनको. सारे आपको या तो सॉफ्ट कॉपी या तो स्कैन कॉपी करके फिर उनको देना है. आई विल सजेस्ट अक्टूबर से शुरू हो रहा है, अक्टूबर से ही आप अप्लाई कर दो, पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी. ऑल गाइज आई होप आपको समझ में आ गया है कि टेस्ट किसको देना है, APS किसको देना है, APS सर्टिफिकेट क्या होता है. फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट डाउन बिलो. एंड आई होप दिस वीडियो इज really beneficial, so please show some love to this video. And that's all. Bye bye. Stay happy, stay blessed.